in the previous two classes we had read and learned what are public sector, यानी कि वो सेक्टर जिसको गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पार्शियली या होली डील करती है. It is the one which is controlling, it is the one which is accountable. Now we are moving to the next one, that is global enterprise. In between there are certain things you need to cut because according to the syllabus which is given on CBSE site, जो आपके CBSE के साइट पर जो syllabus दिया हुआ है, which I have also pasted here, these are the things which we need to cover. That is difference between public and private, then the departmental, statutory and government companies, and last but not the least the global companies, their feature, kinds of joint venture and PPP model. तो अब हमारा जो है we are left only with the global enterprise. हम लोगों ने 11th 10th स्टैंडर्ड में बेटा ग्लोबल एंटरप्राइज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. We have already read about the global enterprises in our chapter globalization. ये उसी चैप्टर का you can say an explanation है. Now in our country specifically we are talking about the economy and the business related to our country. After independence, till a long period, the government did not allow any direct interactions of the business. ऐसा नहीं है कि हमारा दूसरे देशों के साथ में we were not having the relation. Yes, we had the export, we had the import, but they were not direct and we were not allowed. There was a policy which was called as licensing. But after 1990, because there was a hard economic recession in our country, और उस वक्त में it was very difficult, और even the World Bank ने हमें suggest किया that we must change our economic policies, and there we had the new economic policy जहां global companies को free flow of capital, goods, services and also the humans, इसको जो है फ्रीडम दे दिया गया. यानी पहले उन कंपनीज को यहां एंटर करने के लिए they needed to go through lots of procedure and not every company was able to. ऐसा नहीं है कि पहले आपका कैंपा कोला या कोको कोला नहीं मिलता था, तो बिल्कुल मिलता था, everything was there. लेकिन their route and their cost was very high, और उसकी वजह से क्या होता था, जो कॉमन पीपल होते थे they were not able to buy. एंड आपको पता है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन हमारा कॉमन पीपल होता है, तो इकोनॉमी आपका वहीं से सर्कुलेट होता है. एंड देन इवन इंडियन कंपनीज को अगर दूसरे देशों के साथ में इफ दे हैड टू गो फॉर एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, then it was very difficult because they had to go through many formalities and legal procedures also. तो बहुत कम रहता था उन दिनों में आपका कैपिटल फ्लो होना या फिर आपके रिसोर्सेज का फ्लो होना. बट आफ्टर 1991 जो आपकी पॉलिसीज हमारी आई विच वी कॉल एज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या कंपनीज जो है दे हैव एंटर्ड इनटू आवर इकोनॉमी, और हमारे लिए और हम जैसे कंट्रीज के लिए इट हैज बीन अ बून. In the last 2 decades or so, MNCs have played an important role in the Indian economy. They have become a common feature of most developing economies in the world. As I said, not only our country, जैसे हमारी country जैसे और भी countries हैं जिन्होंने through the procedure of multinational companies, क्या है, even जो countries हैं like China, they allowed their labors to be exploited. आपको पता है लेबर सबसे ज्यादा आपके इटली के अंदर, चाइना से जो लेबर जाते हैं वो इटाली जाते हैं. दैट इज व्हाई इवन कोविड आया था ना, सबसे पहले चाइना इफेक्ट हुआ था, फिर मतलब आपका इटली, फिर फ्रांस हुआ था.
सो देयर वाज दिस, ये सभी कंट्रीज ने जो है हेल्प किया, क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट की। MNCs are is evident as is evident from what we see around, क्योंकि आज हमारे पास सब कुछ है, we are having everything, we are sitting at our own pace and we are able to find out everything in this world. They are characterized by huge size, large number of products, advanced technology, marketing strategies and network operations. सबसे बड़ी बात तो है कि they have enormous money, and second is they have number of products, और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए काम आई है वो है द टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया हमेशा थोड़ा सा टेक्निकली पीछे रहा बिफोर 90s। ग्लोबल एंटरप्राइजेस, एंड इसका एक बहुत ही सिंपल सा, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एनी एडवर्टाइजमेंट आप 70s का उठाना, 80s का उठाना और अभी का उठाना, यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई जाती थी, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको दिखाया जाता है ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीदो। पहले ये बोला जाता था इस प्रोडक्ट से ये फायदा है, और अब क्या, पहले देखा जाता है लोगों का दिमाग कहाँ चलता है और फिर बोला जाता है इस प्रोडक्ट में वो चीज है तो हम खरीद लेते हैं, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वी नेवर हैड। Global enterprises, those are huge industrial organizations which extend their industrial and marketing operations through a network of their branches in several countries. या तो वो अपने ब्रांच या यहाँ की किसी कंपनी को खरीद लेंगे, या यहाँ की किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर देंगे, या they may even establish their own product here. They do not aim in maximizing profits for one or two products but spread their branches all over. Now what are the features? आपके पेपर में फीचर्स नहीं आते हैं, जो आएंगे वो मैं आपको बता दूं। These corporations have distinct feature. पहला, huge capital resource, because one, they are really very very credit worthy companies. Secondly, they have the ability to raise funds from different sources. सोल में आप कितना कर सकते हो, हाउ मच यू कैन डू, ओनली टू द एक्सटेंट जितनी आपकी लेबिलिटी आपको हेल्प करती है। इनके लिए ऐसा नहीं है। They may issue equity shares, debentures, bonds. They can borrow from financial institutions and international banks, जो कि आपके नॉर्मल कंपनीज को अलाउड नहीं है। They enjoy credibility in the cabinet. Credibility मतलब इनको थोड़ा आसानी से मिल जाता है। And even investors and banks of host country are willing to invest. हमारी होस्ट मतलब हमारी कंट्री में अगर वो करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ के जो बैंक हैं, they also help them. And because of their financial strength, they are able to survive under all circumstances. आप देखिए जो भी बड़ी कंपनीज है वो नहीं डूबती। अमेज़न डूबा, गूगल डूबा नहीं। वेरस आपकी जो छोटी मोटी कंपनीज थी उनके कई ब्रांचेस को बंद करने पड़े थे, दे हैड टू शट देयर ऑपरेशंस। सेकंड, फॉरेन कोलैबोरेशंस, मतलब दे मे एंटर इनटू कोलैबोरेशन। हमारे यहाँ जो कंपनीज हैं, नाउ मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर कोलैबोरेटेड विद वन और द बेदर MNCs। आप किसी भी कंपनी जैसे कि रिलायंस वॉलमार्ट के साथ में है, then there are companies which are with big companies. Global enterprises usually enter into agreements with Indian companies pertaining to sale of technology, production of good, use of brand names. ये आपके जो है बच्चे, they are the way of entering into market. ये आप लोग जो हो, you will be studying this in your one of the chapters later on. मतलब या तो वो हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं बाय
वेंचरिंग, वो अपना पैसा और टेक्नोलॉजी लाते हैं, and they may ask us to give the manpower and the place. दूसरा, they may ask to produce goods and give them their brand names, or they may produce the goods in our country only. Then at some times they may enter into licensing and franchisee. They may enter into licensing and franchisee. लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी का मतलब हो जाता है आपको उस कंपनी का नाम यूज करने को देना, उस कंपनी के प्रोडक्ट को उनके नाम से सेल आउट करने के लिए देना. फॉर द गुड्स वी कॉल लाइसेंस, फॉर द सर्विसेज हम उसी चीज को फ्रेंचाइजी बोलते हैं. कोको कोला, KFC, मैकडोनाल्ड. These MNCs may collaborate with companies in the public and private sectors. There are usually various restrictive clauses in agreement related to transfer of technology, pricing, dividend payment, tight control by foreign technicians, etc. मतलब काफी strict रहते हैं ये लोग. Big industrial houses wanting to diversify and expand gaining by collaborating with MNCs in terms of patent. Patent मतलब उनका नाम या उनका ट्रेडमार्क को यूज करना, like Coca-Cola, resources, foreign exchange. But at the same time, these collaborations have given rise to growth of monopolies and concentration of power in few hands. क्योंकि कुछ कंपनीज ही हमारे यहाँ पर है जिनके पास भी इतना टेक्नोलॉजी, पैसा या फिर पावर है कि वो ऐसी कंपनीज के साथ एंटर करे. और इसकी वजह से नॉट ऑल द सेक्टर्स या सारे के सारे आप सोल प्रोप्राइटर्स हैं या फिर आपके छोटे मोटे जो दुकान, दे आर नॉट बेनिफिटेड, येट दे हैव बीन. एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इनका जो पैसा होता है ना बेटा, दे स्पेंड मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. जो जितनी भी आपकी बिग कंपनीज हैं, दे स्पेंड मनी ऑन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. और इसी वजह से ये लोग जो है अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहते हैं. These enterprise process technological superiority in their methods of production. They are able to conform to international standards and quality specification. This leads to industrial progress of the country in which such corporations operate, since they are able to optimally मतलब judiciously, सोच समझकर exploit the local resources and raw material. जैसे कंप्यूटराइजेशन, अदर इन्वेंशन. आज हमारे पास एप्स है, आज हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द MNCs. Citibank was the very first मतलब बैंक टू गिव द क्रेडिट कार्ड इन इंडिया. इंडिया के अंदर किसी ने कभी क्रेडिट कार्ड नाम की चीज नहीं सुनी थी. वो अलग बात है कि क्रेडिट कार्ड का जो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई होता था, बट स्टिल इट वाज अ फन फॉर इनिशियली. तो इट वाज वेरी इजी. तब तो EMI स्कीम्स नहीं होते थे, तो पीपल यूज अ क्रेडिट कार्ड टू बाय सर्टेन थिंग्स व्हिच दे कुड पे इन इंस्टॉलमेंट्स. So they were the one who brought this credit card into India. Easy finance in India, digitalization, then technology, product innovation. They are characterized by highly sophisticated research and development departments. तो ये अपने प्रोडक्ट्स को, न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, सुपीरियर डिजाइन्स देते हैं. Qualitative research requires huge investment which only global enterprise can afford. Abhi, I think in the morning when I had gone to the temple, so I was just coming back. So what happened is I was looking at the बहुत टाइम के बाद मैं गई थी at that to Lodi Road.
And while I was coming, I noticed that there were several changes in the construction. Many buildings जो बनी है ना, बहुत ही इनोवेशन से बना हुआ है. तो ये जो कंपनीज होती हैं, दोज विच आर इनटू द टेक्नोलॉजी, ये लोग काफी पैसा खर्च करते हैं. तो देन आई वाज थिंकिंग कि जो छोटे छोटे शॉप्स थे, नाउ दे आर नोवेयर. एंड इवन एक रोड साइड स्टॉल वाले को भी जो है अपने आप को कितना मतलब कि दिखाना, मतलब आज की डेट पर गॉन आर द डेज. हम लोग जब गोलगप्पे खाते थे, हमने कभी नहीं पूछा कि भैया ये मिनरल वाटर है या हाथ धोए या नहीं. Now these things are not there. The quality, the quantity, the everything, hygiene, everything is seen. और ये सब कुछ जो है global companies research करके they try to find out. And that is how ये चीजें अब हमारे day to day चीजों में भी change हो गया है. Marketing strategies. As I said, go and take a look at the 1970s and 80s ad एंड आज के एड में देखो कितना फर्क है. मतलब एड तो तब भी होता था, आज भी है, बट आज का जो एड है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. एंड व्हाट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग? मतलब पहले हम एनालिस करते हैं लोगों को क्या चाहिए. आपके 12th का चैप्टर है, दस अ कंप्लीट मार्केटिंग इज अ कंप्लीट व्हाट यू कॉल एज एक अलग सा कंसेप्ट है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एमबीए मार्केटिंग करते हैं. मार्केटिंग इज अ वेरी वास्ट वन. तो कैसे वो आपके दिमाग को पकड़ते हैं? हाउ डू यू ऑल एंगेज इन द ऑनलाइन गेम्स? आपके घर में आके तो कोई दरवाजा खटखटा के नहीं बता रहा. देन हाउ डू यू नो दैट दिस ऑनलाइन गेम इज देयर or this product is there? They first of all try to research. किस पे आपने देखा होगा आजकल एआई टेक्नोलॉजी चल रही है. आपने कोई एक चीज सर्च की, फिर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में जाओगे तो उसका एक एड वहां पर पहुंच जाएगा. तो दे स्पेंड मनी ऑन दिस. दे ट्राई टू कैप्चर द माइंड्स ऑफ द पीपल. और अपना जो प्रमोशन होता है, अपनी जो एडवर्टीजमेंट होती है, उनको इतना दमदार बनाते हैं that their products are sold. They rope up the best celebrities. मतलब उनको पता है कि ये सेलिब्रिटी चीज को बेचेगा तो they would be taking that person as a brand ambassador. So they spend, they know how to sell their product. उनके लिए ये बड़ी चीज नहीं है. The marketing strategies of global companies are more far effective than other companies. They use aggressive marketing strategy. यही मैंने आपको बताया. Aggressive is the what I have explained you. They would try to capture your mind. भाई उनको पता आज का बच्चा जो है वो YouTube ज्यादा देखता है, तो they try to advertise it in the YouTubes. उनको पता है आज की जो औरत है वो ये चीज को ज्यादा प्रेफर करती है. माओ को सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? मेरा बच्चा, मुझे याद है आई हैड अ वर्ड, मतलब व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, तो आई वाज हैविंग वन ऐसे क्वेश्चन सेशन चल रहा था, तो नेस्ले का चल रहा था मेरा. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि जो ये जो आपकी मैगी है, मैं उन दिनों में मैगी नहीं खाती थी, अब तो फिर भी कभी कभार खा लेती हूँ, तब तो बिल्कुल भी नहीं खाती थी. तो मैंने पूछा कि आप लोग ये जो चीजें बोलते हो कि मैगी में सब्जी है, बट मैगी में कहाँ सब्जी होती है? वो जो सब्जी होती है दे आर डिहाइड्रेटेड, सूखे हुए. एंड अगर आप सचमुच में वहां जहां सूख रहा वहां जाकर देखोगे ना, आप दोबारा कभी नहीं खाओगे. तो दे सेड बिकॉज वी हैड अ रिसर्च, और हमने देखा कि मदर्स को मैगी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चे सब्जी नहीं खाते. आर यू गेटिंग मी? कि मम्मियों को क्या प्रॉब्लम होती है? बच्चा मेरा सब्जी नहीं खाता.
नाउ व्हाट दे सेड इज, देखो तुम्हारे इसमें सब्जी है तो मदर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को भी वो चीज मिल गई, बेचा तो उन्होंने ना. दिस इज हाउ मार्केटिंग इज डन. द सेकेंड एग्जाम्पल आई टेल यू इज, I don't know how many of you have heard this song. Niranjan must have heard, I know. There is one favorite famous song. Why this Kolaveri? Why this Kolaveri? ये सॉन्ग इतना मतलब कि चला था, मतलब दैट वाज अ क्रेज. जबकि अगर आप उस पर्टिकुलर, क्योंकि दैट इज अ तमिल सॉन्ग एंड आई हैव आल्सो वॉच्ड दैट मूवी धनुष की, अगर आप उस मीनिंग को समझोगे ना तो आप कहोगे हे भगवान. कोलावेरी का मतलब होता है मर्डर करने की इच्छा, लेकिन वो गाना बहुत हिट हुआ था. यू नो व्हाई? द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी द person used was the very first on the internet, and that was YouTube. इस पर MBA में रिसर्च किया गया था कि ये गाना इतना जबरदस्त क्यों हुआ. और ये गाना इसीलिए जबरदस्त हुआ था क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग व्हिच वाज अपलोडेड ऑन YouTube बिफोर इट्स रिलीज एंड इट बिकेम अ रेज. तो ये ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को कवर अप करते हैं, हमारे दिमाग को ऐसे समझते हैं, एंड दे ट्राई टू. They possess a more reliable and up-to-date market information system. Their advertising and sales promotion techniques are normally very effective. Since they already have carved out a place for themselves in the global market and their brands are well known, उनके प्रोडक्ट को सेल करना मुश्किल नहीं है. दैट इज हाउ दे क्रिएट. आजकल हर चीज में ब्रांड क्रिएटेड है, हर चीज में. सेलिब्रिटीज आर ब्रांड, थिंग्स आर ब्रांड, सर्विसेज आर ब्रांड. वो लोग ऐसा करते. एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी. Their operations and activities extend beyond the physical boundaries of their own countries. Their international image also builds up and their market. अब नेचुरल है कि आपके पास नाइकी और एक इंडियन ब्रांड होगा और दोनों के सेम दाम होंगे तो विच यू विल बाय? इट्स ऑब्वियस विल बाय, गो फॉर द इंटरनेशनल ब्रांड. आजकल वो इतने सारे ब्यूटी ब्रांड्स हैं. They operate through a network of subsidiaries. मतलब वो सीधा ना भी हो तो उनके जो नीचे है वो branches and affiliates in host countries. और इस वजह से they have the dominant position. Centralized control. अब आप मोबाइल फोन्स का ले लीजिए. Take the example of a mobile phone. How many mobile phones were launched between 95 to I think 95 से लेकर अभी तक? Samsung, the very first was Nokia, second was Samsung, third was BlackBerry, fourth was आपका मतलब कि और एक दो तीन थे, मुझे अभी तो नाम भी याद नहीं है. Then आपका आया था Apple. BlackBerry and Apple were supposed to be office phones. They were not bought by the normal people. एंड देन आपके आए थे ओप्पो. ओप्पो को जो है मतलब कि वो करते हुए आया था वीवो, उसको देते हुए आया था मोटोरोला, फिर आया था आपका Xiaomi. एंड इनमें से अभी कितने हैं जिनका मार्केट डोमिनेंट है? एप्पल, सैमसंग, ब्लैकबेरी अब है नहीं. एप्पल है, सैमसंग है, ओप्पो है, टू सम एक्सटेंट आपके वीवो वगैरह है. दिस इज हाउ दे क्रिएट देयर पोजिशन. सेंट्रलाइज. इनके जितने भी मेन आइडियाज होते हैं, पॉलिसीज होते हैं ना, वो सब कुछ वो वहीं पर जहां उनका मेन ऑफिस है वहां करते हैं. जो आपके डे टू डे आपका काम होता है वो आपके अपने अपनी जगह पर अपने हिसाब से होता है. दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन द होम कंट्री, exercise control over all branches and subsidiary. However,
This control is limited to the broad policy framework of the parent company. मतलब मेन जो होता है वो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही जाएगा. What will be the type of incentives you are going to give, what kind of people you would be giving, what kind of product you are going to give, वो सब कुछ उनका होता है. लेकिन जो डे टू डे ऑपरेशन है उनमें वो इंटरफेयर नहीं करते. उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है मैकडोनाल्ड. यू गो अक्रॉस द ग्लोब, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, चाइना, जापान, फ्रांस या अमेरिका, यू विल फाइंड द सेम मैकडोनाल्ड. उनके मेनू में मेन कुछ चीजें सेम रहती हैं, सेम उनका सब कुछ रहता है. द फ्रेंच फ्राइज, द मतलब जो उनके बेसिक बर्गर्स हैं वो. द ओनली थिंग इज उसके अंदर जो स्टफिंग होगी that would be according to the country's need. जहां जो लोग वहां काम करते हैं उनको जिस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, इट इज यूनिफॉर्म बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दोज कंट्रीज. हमारे यहाँ पर थोड़ा अलग है दूसरी जगह, लेकिन बाकी सब उनका जो बेस है वो सेम रहता है. आप कहीं भी चले जाओ, मैकडोनाल्ड का जो बेस बर्गर होगा वो सेम रहता है, उनका सॉस सेम रहता है. द ओनली थिंग इज हाउ डू दे कुक. इन फ्रांस मैकडोनाल्ड में जो उनका वेज बर्गर कहते हैं ना, दे फ्राई इट इन, मतलब दे यूज फिश ऑयल. whereas if you go to the southeast countries you will find the sea, मतलब कि उससे भी रिलेटेड. डाउन साउथ में जाओगे आपको डोसा बर्गर भी मिल जाएगा. एंड इन नॉर्थ इंडिया यू विल फाइंड दैट आलू टिक्की बर्गर. आपको आलू टिक्की बर्गर यू विल नॉट गेट इन फ्रांस और यू विल नॉट गेट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में आपका जो उनका मटन बर्गर है दैट इज नॉट इन इंडिया. तो दिस इज, लेकिन जो उनका बेस होता है दैट इज सेम. दिस इज हाउ आपका सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है. अब छुट्टियां 11 छुट्टियां देनी है, ठीक है ना, लेकिन अब फ्रांस में छुट्टियां अलग होती है, अमेरिका में छुट्टियां अलग होती है, चाइना में अलग होती है, इंडिया में अलग होती है. तो व्हाट दे से इज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू कैन गिव द हॉलिडेज. दिस इज हाउ दे वर्क. अब एमएनसीज के अलग अलग तरीके हैं. वन इज अ जॉइंट वेंचर. जॉइंट मतलब या तो एक बड़ी कंपनी दूसरी बड़ी कंपनी के साथ जाएगी, या एक बड़ी कंपनी गवर्नमेंट के साथ जाएगी. Business organizations, as you have studied, can be various types, private or government. Now, any business organization, if it so desires, can join hands with another business for mutual benefits. It can be private, government, foreign company. और जब ये दो बिजनेस, ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन है, when two businesses agree to join together for a common purpose and म्यूचुअल बेनिफिट, उसको हम जॉइंट वेंचर, यानी कि मिलजुल के. जॉइंट वेंचर को पार्टनरशिप से बिल्कुल भी, पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर इज अ काइंड, मतलब मिलकर काम करना. Business of any size can use joint ventures to strengthen long-term relations, collaborate on short-term projects. दो कंपनीज मिलके करे, हो सकता है कि एक कंपनी के पास पूरा पैसा ना हो, दूसरा भी डाले. It depends, it is flexible depending upon the requirements. These need to be clearly stated in a joint venture agreement to avoid conflict at a later stage. Now, it can be within the country also. हमारे ही दो कंपनीज मिलके करती हैं, बहुत सारी ऐसे. आप अगर किसी भी कंपनी का प्रोफाइल पढ़ोगे तो आप देखोगे दे हैव एंटर्ड इनटू, एंड एक कंपनी हमारे यहाँ, दूसरी कंपनी दूसरी कंट्री से, ये भी हो सकता है. A joint venture may be the result of an agreement between business in different countries. So there has to be certain provisions provided by the government. भाई आप कैसा करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी कल को कॉन्फ्लिक्ट आया, so that would also affect the country's image. Thus
we can see joint ventures mean many things depending upon the context, हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं. But in a broader sense, a joint venture is the pooling of resources and expertise by two or more business. The risk and reward of the business are also shared. The reason behind joint venture is expansion, development of new products, moving into new market. अब हमारे इंडिया के अंदर किसी कंट्री को आना है, किसी कंपनी को आना है, सोचो what will happen. अगर कोई कंपनी यहाँ आ गई, and if they are not able to sell out their product, what will happen? The company will be in loss. तो कई बार ऐसे लॉस को बचाने के लिए द कंपनीज गो फॉर अ व्हाट यू कॉल एज इजी बेट, आसान तरीका. और वो आसान तरीका होता है ऑलरेडी वहां जो कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट में घुस जाना. रीजन, उस दूसरी कंपनी को जो इंडिया के अंदर है उसे इंडियन मार्केट का अंदाजा होता है, उसे पता होता है कि यहाँ लोग क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं. तो दे कैन इजिली आइडेंटिफाई द मार्केट और बाद में वो उसको कर सकते हैं. मेनी ऑफ द कंपनीज लाइक आपका मारुति में जो सुजुकी है या फिर आपके जितने भी ये मतलब बाकी जो होंडा वगैरह, दे ऑल केम इनटू द वेंचर ओनली. उनको पता था लोगों को क्या चाहिए, देखो दैट्स इजी. It is becoming increasingly common for the companies to create joint ventures with other businesses or companies and form strategic alliances with them. The reasons for these alliances मतलब गठबंधन, यानी कि आपका एक साथ मिलकर काम करना, combining together. These reasons for these alliances may be complementary capabilities and resources such as distribution channels, technology, or finance. In this kind of joint venture, two or more companies agree to share capital, technology, human resource, risk, reward in the form of a new entity under share control. यानी कि they may give a new name to their business, लेकिन जो आपके बिजनेस में आपका कंट्रोल है, आपके शेयर्स हैं, आपका डिविडेंड है और अदर ऑपरेशंस है, उनको ऑन अ गिवन रेशियो दे में. In India, joint venture companies are the best way of doing because there are no separate laws for these joint ventures. The companies incorporated in India are treated the same as domestic companies. मतलब अगर वो कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश कर रही है और हमारे यहाँ का कोई जो कंपनी है इट इज हैविंग द मेजर शेयर होल्डिंग, तो देन वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर दे कैन डू इट. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ जॉइंट वेंचर. फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल, दैट इज आपका एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पीपीपी मॉडल भी आ जाता है. आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, देयर इज नो ओनरशिप, बस कुछ एरियाज में कंट्रोल मिलता है. एंड दूसरा है इक्विटी बेस, यानी कि जहां आप शेयर्स भी जो हो होल्ड कर रहे. कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर इज अ न्यू जॉइंटली एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड. मतलब एक नई कंपनी नहीं बनती. There is only an agreement to work together. The parties do not share ownership but exercise some elements of control. A typical is franchisee relationship. यानी कि आपकी कंट्री में किसी एक कंपनी को फ्रेंचाइजी दे दी गई है. Now the franchisee people are not the owners of McDonald's. सिर्फ इस
कंट्री में जो ऑपरेशन हो रहा है उसका कंट्रोल उन लोगों के पास है। तो दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। वो हो सकता है कि इस साल मुझे दिया है, 5 साल तक मैं चला रही हूँ, और हो सकता है 5 साल बाद मैं मना कर दूं, किसी और को मिल जाए। इसके अंदर देयर इज अ फीस, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस कि किस एरिया को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, किस एरिया पर देहार। अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेंट्रलाइज्ड, तो उनके ही मैक्सिमम आपके जो शर्तें होती हैं, क्लॉजेस होती हैं, दे आर एप्लीकेबल। 2 or more parties have common intention of running business venture. Each party brings some inputs. Inputs मतलब एक पैसा लाएगा, दूसरा मैन पावर, एक पैसा लाएगा, दूसरी जगह लाएगा। Both parties exercise some control on the business venture. The relationship is not a transaction to transaction, but has a character of relativity during, मतलब हर ट्रांजैक्शन को वो लोग चेक नहीं करेंगे। देयर वुड बी ए लॉन्ग टर्म, मतलब फॉर एग्जांपल जब हम लाइसेंसिंग लेते हैं या फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो वी हैव टू पे देम अ गुड अमाउंट। कोको कोला जो है, इट्स अ मतलब कि यूएस बेस्ड कंपनी, और उसका जो टीएम है, ट्रेडमार्क, उसको वो लोग बेचते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और वो जो पेटेंट होता है दैट इज ओनली फॉर अ पीरियड 3 years 5 years, देन द कंपनी मे विथड्रॉ। सिमिलरली द सेम इज फॉर आपका मैकडोनाल्ड, केएफसी, ऑल दोज कंपनीज जो कि दूसरी कंट्री में है और हमारे यहाँ ऑपरेट कर रही है, उनको हम कंट्रैक्चुअल इसलिए बोलते हैं कि दे आर नॉट विद द सेम कंपनी फॉर एवर। अभी 3 years बैक देयर वाज अ मतलब कि लॉन्ग फाइट ऑन मैकडी। उनके कई जो आपके ऑपरेशन है उनको शट किया गया था। एक मैक कॉफी करके भी उन्होंने जो है कुछ फ्रेंचाइजी ओपन किए थे एट सर्टेन प्लेसेस। सेकेंड इज इक्विटी बेस्ड। इक्विटी मतलब जहां ओनरशिप भी हमारा, यहां जो फ्रेंचाइजी है उनमें हमारा ओनरशिप नहीं है। मैकडोनाल्ड के हम फ्रेंचाइजी हो सकते हैं, वी आर नॉट द ओनर्स, ओनर्स वही है। केएफसी का हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, वी आर नॉट द ओनर्स। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर विद इन द कंट्री भी होता है, आपने देखा होगा स्कूल्स में होते हैं। इनफैक्ट फॉर द स्कूल्स वी हैव आई थिंक शेमरॉक, शेमरॉक अपनी फ्रेंचाइजी देता है। आई हैड अ वर्ड विद देम जब मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना था ना, एट दैट टाइम आई वाज प्लानिंग टू ओपन अ स्कूल, बट उनकी जो शर्तें थी ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। आई हैड अ गुड मीटिंग विद मिसेस सुधा गुप्ता, डॉक्टर सुधा गुप्ता, हु इज द ओनर ऑफ दिस मदर्स प्राइड। तो उनकी शर्तें ये होती थी कि पूरा साल सब कुछ वही लोग करेंगे, हमें जिस एरिया में हम मतलब अपना स्कूल रखेंगे, हम बच्चों को सिर्फ उस करिकुलम को पढ़ाएंगे। टीचर्स हमारी हिसाब से हम वी कैन अपॉइंट, दे विल नॉट इंटरफेयर कि हम कैसे टीचर्स अपॉइंट कर रहे हैं। बट कोई भी एक्टिविटी होगी दैट दे वुड बी डूइंग, वी विल नॉट बी डूइंग। फॉर एग्जाम्पल पूरे साल में एक बार उनका एनुअल डे होगा, एंड दैट वुड बी कंडक्टेड बाय देम नॉट बाय अस। मुझे थोड़ा वो आई वाजंट दैट मच कन्विंस्ड, क्योंकि आई ऑलवेज वांट कि मेरा अपना एक इनपुट होना चाहिए। तो ऐसे आपके फ्रेंचाइजी होते हैं, बट दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल। कल को मुझे नहीं चाहिए, आप देखो शेमरॉक होता है, उसके बाद वो स्कूल्स बंद हो जाते हैं, दे आर ओपन इन अनदर नेम। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट में। वेयर इज इक्विटी हमारा जो है वो है जहां ओनरशिप को भी हम शेयर कर। An equity joint venture agreement is one in which a separate business entity, जिसे ओन तो दो या दो से ज्यादा लोग कर सकते हैं, बट जैसे बजाज अलियांस, मारुति सुजुकी, the key operative factor in such a case is joint ownership by two.
मतलब आपकी कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्ट, एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कई कंपनीज में लिखा हुआ होता, वेंचर कैपिटल, there is an agreement to either create a new or for one of the party to join into ownership of मतलब ऑलरेडी है कंपनी है उसमें वो लोग जो है शेयर्स को खरीद रहे हैं, मैक्सिमम शेयर्स, शेयर्ड ओनरशिप, शेयर्ड मैनेजमेंट, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस. A joint venture must be based on MOU. MOU का मतलब होता है देयर इज एन एग्रीमेंट जिसमें मेन क्लॉज को आइडेंटिफाई किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है एनी काइंड ऑफ लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए. Negotiations and terms must take into account the cultural and legal background. When McDonald came to India, long back I'm talking, what happened is when they came, definitely India was not prepared for such a change. तो उनके आउटलेट्स पर बड़े बुरी तरीके से जो है अटैक्स हुए. The reason is कि they were not having the menu which we used to take. And then उन्होंने यहाँ के कल्चरल बैकग्राउंड को पढ़ा, मतलब स्टडी किया, एंड देन दे चेंज देयर एंटायर मेनू, और इस तरीके से पैदा हुआ हमारा नन्ना मुन्ना आलू टिक्की बर्गर. दिस इज हाउ दे नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि किसी भी एरिया में जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो ना, तो देयर शुड बी नंबर ऑफ, देयर आर नंबर, कई ब्रांड्स के नेम पर प्रॉब्लम आ जाती है. Because when you are releasing a brand, it should not have double meanings. पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, I don't remember. वो कार जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो at that time that car was boycotted. The reason, उनकी लैंग्वेज में उसका मीनिंग कुछ और था. तो everything has to be taken. The joint venture agreement must also state all the necessary governmental approvals and licenses that will be obtained within a specified period. जैसे भाई if they are starting with a production, अगर वो हमारे यहाँ पर किसी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, what will happen? प्रोडक्शन करेंगे तो नेचुरल है कि कुछ कुछ जगहों पे आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा. Not everything is free of license, so they need to. That means entering into a joint venture through a global platform. Through a global platform, I'm not talking about an Indian company entering into. Indian company ko to already Indian Act pata hoga. But when you are entering it through a global platform, then you need to understand हमारे यहाँ की जो domestic conditions है, हमारे यहाँ का जो political conditions है, हमारे यहाँ का एक्ट किस चीज को सपोर्ट करता है, हमारे यहाँ का कल्चर किसको सपोर्ट करता है. We need to take everything in an account and then we need to enter. The same thing is, if an Indian company is also entering into joint venture in another country, they also have to go through everything. क्योंकि आपके जॉइंट वेंचर में पैसा, टेक्नोलॉजी, पीपल, रिसोर्स, एवरीथिंग इज शेयर्ड, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड. वो भी उतने ही हिस्सेदार है जितने की हम. So it has to be taken into care very, very carefully. In the next session, we would be doing the benefits. Then last but not the least, the PPP model, which we have already discussed in our summary session.